punishment topic है ना. We have to start with a fresh topic, that is the punishment in IPC है ना. If we talk about punishment in IPC, which section of IPC talk about punishment? बताइए. Section number 53. Section number 53 of IPC talk about punishments. But before reading section 53, let us understand the concept of punishment. Now, what is the concept of punishment apart from IPC? So if you talk about IPC, IPC is very fixed and very concrete about types of punishment that one can be awarded in IPC. चला दे मोहित फैन. What is punishment? पहला सवाल ये है. देखिए, टर्म पनिशमेंट इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी. इस टर्म को आईपीसी में तो डिफाइन किया नहीं है. बट आप बताइए, आपको क्या समझ में आता है पनिशमेंट से? पनिशमेंट इज व्हाट? इट्स अ पेनल्टी है ना, फॉर एन एक्ट विच इज नॉट अलाउड बाय द लॉ. तो इफ आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन जनरल टर्म, पनिशमेंट इज अ पेनल्टी created for an act which is prohibited by law. So I can say the word punishment is basically synonymous to the word penalty in a general English language. तो जो English language में हम word penalty को समझते हैं वही punishment है. तो if I say to punish, if you try to understand the dictionary meaning of the word to punish, means to impose penalty. To impose penalty. The punishment is nothing but it's an imposition of a penalty for an act which is not allowed. Purpose क्या है? अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पनिशमेंट? एग्जैक्टली, फर्स्ट पर्पस इज फर्स्ट टू क्रिएट deterrence into the mind of wrongdoer. तो सबसे पहले जो लोग गलत करते हैं उनके माइंड में एक डिटेरेंस क्रिएट करना है ना, एक फियर क्रिएट करना. सेकंड, टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर so that no person shall repeat the same offense. The purpose is to set an example in the society. To set an example in society. तो punishment का purpose क्या है? Deterrence create करे माइंड में, सोसाइटी के अंदर एग्जाम्पल्स को सेट करे. ठीक है. To establish the authority of a state. ये बात establish की जाए कि state is the authoritative person. Nobody can go beyond the rules established by the authority. है ना? Purpose is to establish the authority of state. है ना? तो बेसिकली ये 3-4 पर्पस है. रीजन है ये कि सोसाइटी के अंदर हार्मोनी क्रिएट रहे, सोसाइटी के अंदर बैलेंस मेंटेन रहे, सोसाइटी के अंदर सारी चीजें मेंटेन रहे. उसके लिए सोसाइटी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और अगर उन रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट किया जाएगा तो सोसाइटी विल क्रिएट अ पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ दैट रूल एंड रेगुलेशन. एंड द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग पेनल्टी इज फर्स्ट दैट यू शुड नो that a state is a authority.
you should take that person in serious context. Second, it set an example to the society. It creates a fear into the future offenders that if we do the same thing again, the consequence will be this, है ना? तो it make the people aware about the consequence. Basically purpose समझे, it is have a preventive nature, है ना? To prevent the purpose of offenses, we can say to prevent offense. अगर एक broader perspective को समझे, it is to prevent the happening of offense, or I can say protection from the offense. तो punishment का काम है prevention से protection create करना by creating a deterrence in the mind of the wrongdoers, or I can say members of the society. अब punishments किस offense के लिए कितनी punishment, how to measure the punishment. मैं आईपीसी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली नॉर्मली अब, है ना, हाउ पनिशमेंट्स आर मेजर्ड. पनिशमेंट्स हाउ मेजर्ड, कौन से ऑफेंस में कितनी सजा दी जाएगी, इस बात को कैसे किया जाएगा. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब भी हम पनिशमेंट काउंट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं. आपने अगर देखा होगा प्रैक्टिस में भी पनिशमेंट दे रखी है 10 साल, अप टू 10 इयर्स, अप टू 7 ईयर. हर ऑफेंस में 7 साल की सजा मिलती नहीं है, या पूरी 10 साल की मिलती नहीं है, या अगर डेथ पेनल्टी दे रखी है तो सीधा डेथ पेनल्टी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, है ना. देयर इज अ डिस्क्रिशन लेफ्ट विद द जज. जज को डिस्क्रिशन दिया गया है टू मेजर्स द पनिशमेंट्स, है ना. हाउ ही विल डिटरमाइन, तो मान लो किसी अपराध के अंदर लिखा गया है कि इस अपराध के अंदर इस व्यक्ति को 4 साल तक की सजा हो सकती है. 4 साल तक की सजा हो सकती है. 4 साल की होगी, ये अनिवार्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है. दैट मीन्स इट इज द जज हु विल मेजर. 1 दिन की दूं, 2 दिन की दूं, 10 दिन की दूं, 20 दिन की दूं, 2 महीना, 2 साल, या पूरा 4 साल, उसकी विश. My question is this: when judge is doing this, what are the factors he take into consideration to find out the measurement of the punishment, to find out the value of the punishment which he have to be inflicted? वो क्या सजा देना चाहता है, इसको काउंट करने के लिए वो बेसिक फैक्टर्स क्या क्या है. ये फैक्टर्स चेंज होंगे विद द ऑफेंसेस, बट बेसिक फैक्टर्स की बात कर रहा हूं कि बेसिक फैक्टर कौन कौन से हैं जिनको वो फोकस करेगा ही करेगा. पहला है, हमने पढ़े हुए हैं, बस हमको लिखो हैं, है ना, मोटिव और द पर्पस ऑफ डूइंग द क्राइम. मोटिव और पर्पस ऑफ क्राइम. जज विल सी एट व्हाट मोटिव दिस क्राइम इज डन. दो मोटिव हैव नो रोल इन डिसाइडिंग द लायबिलिटी, बट मोटिव प्ले रोल व्हाइल डिसाइडिंग द पनिशमेंट, है ना. पनिशमेंट डिसाइड करने में मोटिव का रोल है, क्राइम करने में मोटिव का कोई रोल नहीं है उसकी कोई. बट क्राइम अगर प्रूव हो गया तो यस, एट द टाइम ऑफ inflicting the punishment sentence, court always take the consideration the purpose of crime. ठीक है. सेकेंड ऑब्वियस है gravity or the magnitude of the crime, है ना. we can say gravity or magnitude of crime. छोटे छोटे से फैक्टर हैं, बहुत फास्ट इसलिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. एग्जाम ओरिएंटेशन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ग्रेविटी ऑफ क्राइम क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम? seriousness of the crime. What do you mean by seriousness of the crime? How this crime
हैज शेकन द कॉन्साइंस ऑफ द सोसाइटी। किसी भी अपराध का समाज पर किस तरीके का प्रभाव है ना, वो किस तरीके के प्रभाव डालने वाला है, उसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं निकल के सोसाइटी पे। तो किसी को थप्पड़ मार दिया, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, ठीक है थप्पड़ मारने से कौन इतना इम्पैक्ट होता है, बट किसी का गला काट दिया, सीवियर, आप समझिए ना, किसी का गला काट दिया, इट्स अ मर्डर। जो लोग सुनेंगे बोलेंगे वाओ गला काट दिया, या हाउ गला काट दिया। हाउ बोलेंगे, वाओ तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ना हाँ गला काट दिया, बाप रे बाप। बट सपोज गला काटने की जगह उसकी बॉडी के 5 पीस करके फ्रिज में रख दिया और रोज थोड़ा थोड़ा फेंक दिया, ये सुन के क्या होगा, ये सुन के लिए स्तंभ हो जाएगा आदमी, ही विल बी इन अ शॉक, ही विल नॉट रिएक्ट फॉर सम टाइम, एंड देन ही विल डिस्कस दैट थिंग फॉर सो मेनी डेज विद द फैमिली, कि कैसा माइंड होगा यार, कैसे किया होगा, कैसे कर लेते हैं लोग, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा क्या हो गया होगा। दिस शोज द ग्रेविटी, दोनों में ही मर्डर हो रहा है, बट दोनों की पनिशमेंट डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी डिफरेंट हो गई है, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, बिकॉज उसका इम्पैक्ट अपॉन द सोसाइटी डिफरेंट हो गया। थर्ड फैक्टर जो आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, दैट इज द करेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड। ये बेसिक 4 फैक्टर्स हैं ना, 3 फैक्टर बेसिकली आई कैन से, 3 से 4 फैक्टर्स हैं जिनको हर बार कोर्ट फोकस करता है। व्हाट डू यू मीन बाय करेक्टर ऑफ द, कई बार लोग गुस्से में कर देते हैं, उसने कभी सोसाइटी में कोई बैड इम्पैक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट ही डिड अ क्राइम इन अ फिट्स ऑफ अ मूवमेंट, है ना। तो एक क्षण में कुछ ऐसा हुआ कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वो क्राइम कर दिया, बट इज अ मैन ऑफ अ गुड करेक्टर। कोर्ट में शो little sympathy towards that person, but suppose somebody is a habitual offender, जहां मौका मिलता है वहां मर्डर कर देता है, जहां मौका मिलता है वहां चोरी कर लेता है, is an habit of it, obviously court will not show empathy, rather it will be stricter, though his offense might be very small, but they know this is a person of a corrupt mind, है ना, he should be taken care of। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं एट द टाइम ऑफ क्राइम, पनिशमेंट के टाइम पे ध्यान रखा जाता है। हाँ, दैट इज करेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड। करेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड विल कम इनटू एवरीथिंग, है ना, प्रीवियस एंटीसीडेंट्स उसमें काम होते हैं, है ना, पहले से कैसा करता था, करेक्टर वहीं से तो डिसाइड होता है ना, पहले कैसा था बिहेवियर उसका और अब कैसा बिहेवियर है, यानी कि शुरू से क्राइम करता आ रहा है तो ऑब्वियस है इज नॉट अ गुड करेक्टर पर्सन, बट पहली बार सब कुछ ठीक है बट अचानक से क्राइम कर दिया है ना, नॉट अ मैन ऑफ अ बैड करेक्टर। जनरल वाइज वर्सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो व्हाट इज पनिशमेंट वी आर डन, है ना, फर्स्टली, सेकेंडली पर्पस ऑफ पनिशमेंट समझ में आया, थर्डली पनिशमेंट को मेजर करने के लिए किन फैक्टर्स को ध्यान रखना है, फोर्थ एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं टच करना चाहता हूं, दैट इज थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, है ना, पर्पस ऑफ पनिशमेंट से डिफाइंड है ना, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। सबको पता है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, बताइए कौन कौन सी थ्योरीज है। फर्स्ट इज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, है ना, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। व्हाट इज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, an eye for an eye, tooth for a tooth, है ना, एंड a limb for a limb, है ना, खून का बदला खून। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी इज वेरी सिंपल, आई फॉर एन आई, tooth for a tooth, a limb for a limb। That means
this theory believes in the idea of revenge. This theory believes in the idea of satisfaction of the victim. It believes in the idea that the offender shall suffer to the extent the victim has suffered. है ना? ये थ्योरी मानती है कि हम ऑफेंडर को उतना ही सताएंगे जितना उसने विक्टिम को सताया है, जिस लेवल पे विक्टिम को सताया है. बहुत सारे लोग इसको फेवर करते हैं, बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं. इंडियन jurisprudence does not follow this theory. Basically, this theory is primitive theory. पुराने जमाने की थ्योरी है. कुछ देश में अभी भी फॉलो की जाती है, बट नॉट वेल सपोर्टेड बाय द सिविलाइज्ड सोसाइटी. रेट्रिब्यूटिव थ्योरी को सिविलाइज्ड सोसाइटी ज्यादा पसंद नहीं करती है ना, क्रिटिसाइज की जाती है. मैं इस पे लिखवाऊंगा, इसलिए मैं इसको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरीज को. आई विल मेक अ डिक्टेशन ऑन दिस. ये इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछ लेते हैं, बिहार में बहुत पूछते हैं टाइप्स ऑफ थ्योरीज. बिहार, यूपी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, है ना, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो, मतलब दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट. जुडिशरी की बाकी डीजीएस में नहीं पूछते हैं, है ना. डीजीएस में मान के चलते हैं कि जज की तैयारी कर रहा है तो इतना तो कॉमन सेंस होगा, है ना. दे प्रिज्यूम कॉमन सेंस. यूपी एंड बिहार डोंट बिलीव दैट यू हैव कॉमन सेंस, है ना. सेकंड इज अ डिटरेंस थ्योरी. Deterrent theory. What is deterrent theory? Deterrent theory is to set an example for the society, to create deterrence, fear into the mind of society. So they are say, for this what they believe, that punishment should be an example. Punishment should set an example for whole society. That is, punishment should create a lesson or become a lesson for the future, है ना. Punishment should be a lesson. Punishment should be a lesson for others. ठीक है, तो पनिशमेंट इस तरीके से दो कि जो पनिशमेंट है वो एग्जाम्पल बन जाए सबके लिए, लोग उसको याद करके फियर क्रिएट करे माइंड में कि नहीं, ऐसा करने से ये होता है. दैट इज डिटरेंट थ्योरी. थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी इज, बताइए, प्रिवेंटिव थ्योरी. सबने पढ़ा हुआ है ये कॉलेज में ना. इंपॉर्टेंट तो बेयर एक्ट है, हम बेयर एक्ट में मूव करेंगे तब इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज प्रिवेंटिव थ्योरीज? व्हाट इज प्रिवेंटिव थ्योरी? हाँ बताओ. पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज टू प्रिवेंट द क्राइम, है ना, है ना. जैसे punishment should act as prevention. That is, they are saying stop the happening of crime, punish the person before the crime happened, है ना. That is, इस थ्योरी के बेसिस पर बिलीव क्या करते हैं, ये थ्योरेटिकल कि आप क्या करो, आप चेक ऑन करो, और अगर आपको लगे दिस पर्सन कैन डू द क्राइम, है ना, stop him to do the crime, है ना. Purpose is to prevent crime before it happen.
और आई कैन से अगर मैं इसको डिटेरेंस माइंडसेट से क्रिएट करूं तो डिटेरेंस माइंडसेट की तरह ही है, बस वो क्या कहता है, डिटेरेंट थ्योरी क्या कहती है, कहती है हम पनिशमेंट देते हैं ताकि डर क्या पैदा हो। ये क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव थ्योरी वाले कहते हैं हम पनिशमेंट देते हैं इसलिए नहीं कि डर हो, इसलिए कि आगे ये क्राइम ना हो, क्राइम को प्रिवेंट किया जाए, है ना। पनिशमेंट इज एन एग्जाम्पल टू प्रिवेंट द क्राइम। तो कह रहे हैं पनिशमेंट इज एन एग्जाम्पल नॉट फॉर डिटेरेंस बट टू प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम। तो पहले बेसिकली पुराने जमाने में क्या होता था, पनिशमेंट इज टू प्रिवेंट द क्राइम मतलब समझाते हैं, किसी ने चोरी की, हाथ काट दिया, अब वापस चोरी करेगा ही नहीं। समझ गए, लिम्ब फॉर लिम्ब और टूथ फॉर टूथ और डिटेरेंस का एग्जांपल, सेट एग्जांपल ये है, दोनों को मिक्स करके निकलता है प्रिवेंटिव थ्योरी। ठीक है, किसी ने गाली बकी, जुबान काट दी, अब बकेगा ही नहीं, हो गया प्रिवेंट क्राइम। और आने वाले भी सोच के रखेंगे कि चलो क्राइम नहीं है। समझ रहे हो, तो एग्जाम्पल सेट करती है। ऑफेंडर को उसने चोरी की, इसकी प्रॉपर्टी फॉरफीट कर दी, है ना, हाथ काट दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पुराने जमाने में होते थे, है ना, अभी भी बहुत सारी स्टेट्स में है। ठीक है, केमिकल कास्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, कास्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, है ना। तो किसी ने रेप किया, उसको कास्ट्रेशन कर दिया, केमिकल कास्ट्रेशन कर दिया, यानी कि मेकिंग हिम इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, खत्म, उसका तो क्राइम होगा ही नहीं। ठीक, तो ये भी डिटेरेंस थ्योरी की तरह है, ऐसा नहीं है, या रिफॉर्म आई कैन से रेट्रीब्यूटिव। तो प्रिवेंटिव थ्योरी जो है वो मिक्स है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का और डिटेरेंस थ्योरी का, है ना। तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में सीधा मार देते हैं, सीधा काट देते हैं, जो कर रहे हो जैसा कर रहे हो वैसा मिलेगा। डिटेरेंस में पनिशमेंट देते हैं और एग्जाम्पल सेट करते हैं, यहाँ पे जैसा कर रहे हो वैसा ही मिलेगा। और क्यों मिलेगा, ताकि वो क्या करे, आने वाले टाइम में क्राइम को प्रिवेंट करे, और कुछ नहीं। वी ऑल्सो डू नॉट बिलीव इन दिस थ्योरी, इंडिया इनमें से किसी भी थ्योरी में बिलीव नहीं करती है, डिटेरेंस में थोड़ा बहुत करती है ना। फोर्थ वेरी कॉमन, दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इंडिया बिलीव इन दिस थ्योरी, रिफॉर्मेटिव, है ना। इट इज एन वेरी वेरी रिसेंट ओरिजिनेटेड, है ना, इटालियन ओरिजिन है इसका, इटली से ओरिजिनेट हुआ है, इट्स एन इटालियन ओरिजिन, है ना। बिलीव इन द आइडिया ऑफ रिफॉर्मेशन, बिलीव दैट, है ना, पनिशमेंट एम्स टू रिफॉर्म। ठीक है, तो पनिशमेंट का पर्पस क्या है कि रिफॉर्म किया जाए। इंडिया ज्यादातर इस पे फोकस करती है, बाकी थ्योरीज पे फोकस नहीं करती है कंप्लीटली, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, है ना, बहुत सारी थ्योरीज पे फोकस करती है, हाँ, बट सारा फोकस काय पे है, रिफॉर्मेटिव पे। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या बिलीव करती है, ये थ्योरी बिलीव करती है कि जो ऑफेंडर है ना, वो डिसीज्ड पर्सन है, वो बीमार है, इज अ सिक इंडिविजुअल। दे बिलीव that the person who has committed the offense is psychologically not fit, and the purpose aim should cure that sickness. ठीक है, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी बिलीव करती है that the person, or I can say offender, is a sick person, can be cured by punishment, है ना। इसको क्योर किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कैसे क्योर किया जा सकता है, अगर आप तिहाड़ जेल में जाएंगे तो तिहाड़ जेल इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी, है ना। तो इफ यू गो इनटू तिहाड़ जेल, देयर आर पीपल हु आर सर्विंग लाइफ इम्प्रिजमेंट, और उन्होंने वहां रहते रहते ही अपने डिप्लोमास पूरे कर लिए, एंड नाउ दे आर डूइंग जॉब। सुबह निकलते हैं, नोएडा, फरीदाबाद,
गुड़गांव आपके बीच में से ही पहुंचते हैं, है ना, कि कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है ना, कोई और काम कर रहा है, और शाम को वापस तिहाड़ जेल आते हैं और अपनी सेंटेंस सर्व करते हैं। अभी हम तिहाड़ जेल की बात कर रहे हैं। यू विल, ऐसे मत देखो, ऐसा है, दिस इज हैपनिंग इन इंडिया, है ना। तो दे सर्व देयर लाइफ सेंटेंस इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग दे डू द जॉब, they have achieved that reformation. Few have not achieved that reformation. तो आप देखेंगे तिहाड़ जेल के अंदर few people are working in a canteen, they are working as a craftsman, है ना, they are working as weavers, sweepers, अपना खुद का कॉलेज चलता है। इसी कंडीशंस प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब देते हैं बिकॉज ऑफ अथॉरिटेटिव ऑफ तिहाड़ जेल, है ना। ही इज नॉट ऑफ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, ही इज सर्विंग द पनिशमेंट, ही इज अ क्रिमिनल, है ना, बट रिफॉर्मेटिव थ्योरी में बिलीव करने की वजह से, है ना, तिहाड़ जेल उसको रिकमेंड करती है कि वी टेक द गारंटी ऑफ दिस पर्सन दैट ही विल नॉट रन, है ना, ही विल नॉट, और उसको nobody is informed apart from the highest people of the fact this institution, वही जानते हैं कि he is coming from where, ताकि he can easily get into the society, he can get mingled into the society.